Okay, so good afternoon, everyone. Today we are going to start a new chapter, the chapter number 2 of your reasoning syllabus, and the name of the chapter is Coding Decoding. As the name sounds, very interesting. This chapter will be very interesting for you. But first of all, इस chapter का use समझ लें. By most of you in future will be going to software industries or in any industry वहाँ पे जो भी काम होता है that is done through coding. By I am teaching you on a laptop. अभी मैं यहाँ पे कोई टर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो आपको ए दिखेगा. Do you know how it is, what happens inside the laptop? That although it is a different story, the CPU, the processing unit of the laptop, the brain of the laptop converts my A into the binary language, and then it is again reconverted, and then you see it. ये जो मेरा चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, मेरे चेहरे के पीछे जो आप लोगों को किताबें दिख रही हैं, a big library that you can see, this is all a magic of coding and decoding. One fine day I was just watching the videos like कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई. We are using, perhaps if I'm not wrong, we are using perhaps 6th generation of the computer, and the first generation of the computer that initially they were as big as the houses, as big as this room. And now we have computer which are as small as if they can fit in your hand. The mobile phone that I'm using another form of a computer only. It is nothing but it is a computer. It is a computer only, right? I can do anything on a mobile phone. If I so everything is a magic of this coding and decoding. अगर ये coding and decoding नहीं होता तो शायद आज की डेट में जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस पॉसिबल ही नहीं होती. That is the first reason why I am reading this chapter. The luckier among you would be going into government services after say 10 years. So there are some particular department of ministries, like of Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs. What they try to do is they try to they try to decode the information of anti-social elements. So that subject also has its background. That subject also has its root in this topic called coding and decoding. बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं सर? हम इस चैप्टर में दो टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं. एक टाइप की चीज वो है कि हमारे पास एक लेटर लिखा, एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड होगा. ध्यान से सुनना, मैं आपको आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द जिस्ट ऑफ द चैप्टर. हमारे पास एक वर्ड दिया होगा, उस वर्ड का एक पर्टिकुलर कोड होगा. दैट कोड कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक ऑल्सो, इट कैन बी अल्फाबेटिकल ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग. बेस्ड अपॉन दैट कोड, उसी कोड के हिसाब से आपको एक दूसरा वर्ड बनाना पड़ेगा. आपको दूसरे वर्ड का कोड बताना पड़ेगा. For example, let me give you one small example before beginning. मैंने आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. ANIM in a certain coded language, ANIM is written as MINA. So you have to tell me, my dear friends, you have to tell me for the code for किसका कोड बताओगे? RUPA. You have to tell me the code for RUPA. So these type of questions will be there. So if I try to analyze it carefully, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. The word M, that was the last word of my given, the letter M is coming first,
then I'm having I, then I'm having N, in the last I'm having A. So my code for Rupa will become APUR. APUR. It will become APUR. So these type of things, this is just the starting. I may have different type of arrangements. So this is what we have to, these type of things we have to deal in this चैप्टर. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. चैप्टर बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज पहचानने की जरूरत है, कोड. तो कोड पहचानने के लिए हमारे पास दो टाइप के टूल्स, द टूल्स विच वी हैव, द वेपन्स विच वी हैव इज, एक तो अल्फाबेट का करस्पॉन्डिंग नंबर, और दूसरा माय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन that we have learned, that is my tools. तो इन्हीं टूल्स के हिसाब से हम करेंगे. तो लेट अस गेट स्टार्टेड. इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक होता है पजल बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड कोडिंग, और दूसरा होता है कॉलम बेस्ड कोडिंग. तो दैट विल बी dealt in the later part of the chapter. So first of all get started and let us do some of the things. चलो. Now, as I told you, in this chapter, we will be dealing with many things. What many things, sir? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे letter coding. Then I will read letter number coding. Then I will read substitution coding. The last two are puzzle based coding and the column based coding. तो ये चार पांच चीजें, this chapter can be broadly divided into 5 parts. These are the 5 parts in which the chapter has been divided. We will try to finish up with the first 3 parts today, so that you guys have some work for this weekend. And after that, on in your next class, we will try to wrap up the chapter by finishing the second two parts. दूसरी चीज ये कि आई विल ट्राई टू डिस्कस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बट आप लोगों ने देखा होगा आपके बुक्स में देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन. सो करते जाओ करते जाओ करते जाओ. मेंटल एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स कम आएंगे. जिसको बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसने प्रैक्टिस कम की है. ठीक है, दिस इज द सिंपल लॉजिक ऑफ मेंटल एबिलिटी. मैथमेटिक्स में क्या है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने डाउट्स आएंगे. इन मैथमेटिक्स इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, जब हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनी डाउट, आप लोग बोलते हो नो डाउट. मुझे तभी समझ में आ जाता है कि यू गाइस हैव नॉट डन प्रैक्टिस. बट इन मेंटल एबिलिटी द थिंग्स विल गो रिवर्स. अगर मैंने आपसे पूछा सर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनी डाउट, आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9. इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया ही नहीं है. ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. एंड लेट मी टेल यू वन सीक्रेट. एज ए टीचर ऑल्सो मुझे काफ़ी टाइम हो गया मेंटल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए, बट स्टिल हम लोग के जो बैचेस होते हैं वो जैन फेब में ख़त्म हो जाता है, और अगला जो बैच होता है वो अप्रैल में चालू होता है. एंड जो मैट का बैच होता है वो नॉर्मली मई में चालू होता है. तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 months. देयर इज़ अ गुड गैप ऑफ 4 months. तो उस गैप में बेटा, उस गैप में अगर मैं एज ए टीचर, इवन इफ आई एम नॉट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ मेंटल एबिलिटी, हो सकता है कि जब मैं आपके सामने क्लास में आऊंगा तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन पूछा एंड आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट. ये भी होता है, कई बार हुआ भी है. तो मुझे इस चीज में कोई हिचक नहीं होती. नहीं आया नहीं आया, अगली क्लास में बताएंगे यार. इसमें कौन सी बड़ी बात है. टीचर हूं, सरस्वती मैया तो हूं नहीं जो मुझे सब आता है. Anyways, let us focus on the topic. Let us focus on the topic. But the thing is, you have to practice. मेंटल एबिलिटी का में सक्सेस पाने का एक ही रीजन है बेटा, प्रैक्टिस. और एक बात मुझसे लिखवा लो, किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, इफ देयर इज समथिंग विच कैन हेल्प यू, लीस्ट लेबर एंड मैक्सिमम आउटकम, दैट सब्जेक्ट इज मेंटल एबिलिटी. कम से कम मेहनत और मैक्सिमम आउटकम. आप मेंटल एबिलिटी अच्छे से पढ़ोगे तो आप अपने एग्जाम में 200 आउट ऑफ 200 भी स्कोर कर सकते हो. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ोगे तो भी कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अपने एग्जाम में ऑन ऑन योर डूम्सडे यू विल बी एबल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20.
आप 19 तक जा सकते हो, आप 18, 19, 20 भी जा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी कि आप 20 आउट ऑफ 20 पे चले ही जाओ। लेकिन हाँ, मेंटल एबिलिटी में इस बात की गारंटी दी जा सकती है। एनीवेज, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल मैथमेटिक्स को इग्नोर करना शुरू कर दो, थप्पड़ खाओगे अगर ऐसा करोगे तो। चलो, एनीवेज, so before starting the chapter, one thing was there that I wanted to discuss with all of you. That was the thing that we discussed last turn also. पिछले टर्न पे भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था सर? हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी। एक तो किया था अपन ने लेटर की कोडिंग, जिनको याद नहीं है फिर से एक बार देख लो। सर, ए की पोजीशन 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6, जी की, मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी अपने मन में रिपीट करते रहो। एफ के ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, 10, जे की 10, के की 11, एल की 12, एम की 13, एन की 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26. This should be like your sacred, जो भी आपके घर में जो भी पूजा होती है, दिस शुड, तो मंत्र पढ़े जाते होंगे, आपके मम्मी पापा पक्का पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे, तो दिस शुड बी लाइक दैट सेक्रेड मंत्र फॉर यू। इसको सुबह शाम इसका जाप करो, सारी चीजें, सारे मेंटल एबिलिटी के सारे सवाल आसानी से होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, डिकोडिंग का मतलब ये होता है, कोडिंग डिकोडिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग मींस आपके पास एक कोड दिया हुआ है, उसको आपको डिकोड करना है। फिर आपको बताना है कि जो हमारे पास वर्ड है, हमारे पास जो भी वर्ड दिया हुआ है, जो भी गिवन वर्ड है, उस वर्ड का कोड उस लैंग्वेज में या यूजिंग द सेम लॉजिक उस वर्ड का कोड कैसा होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। सब द फर्स्ट थिंग इज लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग बोले तो एक लेटर को, एक वर्ड को किसी तरीके से किसी फॉर्मेट में दूसरे वर्ड में लिखा गया है। क्या फॉर्मेट है मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द गिवन, जो भी हमारे पास वर्ड है उसका कोड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, की कुमार इज coded as, कुमार is coded as, इसमें The इस टाइप answer is के, B. एक मिनट बेटा, एक मिनट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चा? सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो सर पैटर्न वर्ड, ढूंढना। जो वर्ड है और उसका जो कोडेड वर्ड है, उन दोनों को आपस में एक दूसरे के आमने सामने या ऊपर नीचे लिखो, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। मेरे पास तो जगह है, आप लोगों को तो अच्छा हाँ, एक चीज और, जब भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, आपका जो फुल पेज है उस पेज का 1/4 पोर्शन लेकर ही प्रैक्टिस करना। इफ योर पेज इज A4 साइज, उसका 25% लेकर ही आप रीजनिंग को के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि वो जो 25% का पेपर है, आगे पीछे दोनों मिला के आपका पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाए। वाई आई एम सेइंग यू लाइक दिस, बिकॉज एनटीएससी का जो पेपर होता है या आज की डेट में जो भी पेपर्स होते हैं, उसमें बेटा रफ शीट्स नहीं दी जाती हैं। वो जमाना गया जब आपको रफ शीट्स दी जाती थी, अब रफ शीट्स नहीं मिलती है। तो दूसरी चीज ये, द मोर यू विल राइट, द मोर यू विल लूज योर टाइम। अब जितना लिखोगे भाई, इस एक वर्ड को लिखने के लिए अगर मुझे 1 सेकंड लगता है, तो देखो मुझे कितने सेकंड्स लग रहे हैं। यहाँ पे इसका कोड है LVNBS, 5 5 10 सेकंड हो गए। अगला वर्ड है सर इमोशनल, EMOTIONAL। अब मुझे इसका कोड बताना है, व्हाट विल बी इट्स कोड। तो ये कोड मुझे बताना है। अब ये मुझे बताने के लिए सर, मैंने 5 5 10 और 10 और 4 14 और 18 19 सेकंड तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। 19 सेकंड तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। तो आगे पता नहीं और कितना टाइम लगेगा एक सवाल में। तो इसीलिए ट्राई टू मेक इट ए हैबिट टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओरली।
चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। खैर ये सारी हैबिट्स धीरे धीरे आएंगी, बट डेवलप इट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। द क्वेश्चन इज कुमार इज कोडेड एज LVNBS। अगर मैं ध्यान से देखूं तो के बाद एल आता है, वेरी गुड। यू के बाद वी आता है, वेरी नाइस। एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, और आर के बाद एस आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द लेटर्स बाय 1। तो अब मेरे पास ये होगा, अब नाउ हमारा जो गिवन लेटर है, हमारा जो गिवन वर्ड है, उसमें भी हम एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो ई का एफ होगा, एम का एन होगा, ई का एफ, एम का एन। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे हो ही नहीं सकते। ई का एफ हो गया, एम का एन हो गया, ओ का पी होगा। ओ मतलब जो थर्ड लेटर होना चाहिए मेरे गिवन कोड में वो पी होना चाहिए, FNP। सो माई माई द मेरे फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ माई आंसर विल बी FNP। इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने ये दे वांटेड यू टू थिंक लाइक दैट, बिकॉज मान लो यहाँ पे तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का वर्ड है। मान लो यूजिंग द सेम कोड अगर मैं 19 लेटर का वर्ड बना देता, तो क्या आप पूरा का पूरा 19 चेक करने जाते? नो वे। नो अगर सर। अगर मुझे आंसर फर्स्ट 3 से मिल जा रहा है तो मैं बाद में क्यों 19 चेक करूं? दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। सी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 2 तरीके होते हैं सक्सेस पाने के। पहला तरीका तो ये होता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन पता है, आपको करेक्ट ऑप्शन पता है, आपने आंसर मार्क कर दिया, वेरी गुड, यू गॉट योर मार्क्स, वेरी गुड। बट एक दूसरा तरीका और होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इवन इफ यू डोंट नो and if you have some common sense, if you can apply some general logic, then definitely you can mark the questions. Out 10 out of 8 chances, 8 out of 10 chances ये होगा कि आपका जो आंसर मार्क होगा वो करेक्ट आएगा। हाँ, 1-2 चांसेस में गलत होगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो मार्क्ड आंसर है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर मैंने इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन भी मेरा क्यू के बेसिस पे एलिमिनेट हो गया। मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया है। Here I have not selected this option, rather I have rejected the other 3 options. So this method is called as the method of option rejection. So you have to apply these methods. You should develop your habit that of applying these methods also. एक दिन में डेवलप नहीं होगी, धीरे धीरे डेवलप होगी। तो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करो, ठीक है, पक्का होगी डेवलप। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल बी डूइंग, इफ जापान इज कोडेड एज दिस देन यू हैव टू कोड, टेल मी द कोड ऑफ कैसल। मेरा तो आंसर आ गया। यस सर, पैटर्न समझ में आ गई। पैटर्न समझ में आ गया, आंसर बताओ। Sir, the answer is option D. आंसर मेरे को चैट पे लिख के बताओ। दो ही 3 लोगों का आंसर आया भाई, बाकियों का क्या हुआ? चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर है, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सेकंड वन? व्हाट अबाउट सेकंड वन? नोबडी इज गिविंग आंसर फॉर सेकंड वन।
Sir, doing. Doing. Do यार. सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए. Yes, sir. क्या बात करते हो यार. क्या बात करते हो यार. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसे आ सकता है. Yes, sir. Not yes, sir. No, sir. No, sir. Answer is not coming in. चलो देखो बहुत टाइम दे दिया भाई. इतना टाइम नहीं मिलता सवाल को Sir, करने. 2 minutes. Sir, by mistake. 2 minutes. चलो 2 मिनट दे दिया बट इतना टाइम मिलता नहीं है. पहला क्वेश्चन तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया भाई. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर सी. अच्छा. सोचा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी के बारे में. अनन्या. Option C. ऑप्शन नंबर सी. ओके. अनन्या का नाम लिया तो अनन्या ने बोला ऑप्शन सी. सर मैंने नहीं बोला. अच्छा, आपने मैंने नहीं बोला. तो व्हाट इज योर आंसर. Sir, option C. आपका नाम अनन्या है क्या. अनन्या आप आंसर बताओ. व्हाट इज योर आंसर. सर ऑप्शन सी. ओके. और वो कहाँ गई. आज आई नहीं है क्या. निष्ठा यू आर नॉट इन द क्लास. नो शी इज नॉट इन द क्लास परहैप्स. चलो. Sir, it's not A. Yes, Soumya, it's not A. What is the answer? Okay. चलो देख लो भाई. बहुत टाइम दे दिया. जिनका आंसर आ गया है उनका भी अच्छा है. जिनका नहीं आया है उनका भी अच्छा है. एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं. नाउ प्लीज नो मोर चैटिंग. क्योंकि आप चैट करोगे मैं देख नहीं पाऊंगा. फिर आई विल फील डिस्ट्रैक्टेड. देखो भाई सबसे पहली बात ये है कि पहले क्वेश्चन को करना है. तो भाई पहले सवाल को करने से पहले किसी भी लेटर कोडिंग को करने से पहले एक बात का ध्यान रखें. आप जो भी कोडिंग बना रहे हैं आपका जो गिवन वर्ड है और जो वर्ड. एक सेकंड. आपका जो गिवन वर्ड है और जो वर्ड आपसे पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल count and see whether the letters in both the words are same or not. इसका क्या पर्पस है ये आगे बताता हूँ. दूसरी चीज ये अब जापान की बात करें तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जे के बाद अगला लेटर कौन सा आता है. जे के. Position of K is 11. Position of C is 2. Letters is +1, +2, +3, +1 +4, +2 +5. +3 +4 +5 इस तरीके से जो मेरे लेटर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं. अब जब मैं ऑप्शन के पास जाऊंगा तो देखो मुझे क्या मिल रहा है. पहले दो लेटर्स तो मेरे सभी में सेम है. डी सी डी सी डी सी डी सी. तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन डी सी. आई विल स्ट्रेट अवे कम टू एस. एस के साथ क्या हो रहा है. पी क्यू आर. यानी कि एस टी यू. दो लेटर छोड़ने के बाद यहाँ पे थर्ड लेटर मेरे गिवन कोड में वी होना चाहिए. वी वाला देख लो. वी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर. द थर्ड लेटर इन योर कोड. The third letter in your code should be V.
तो V वाला देख लो, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें V दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। अब एक सवाल उठता है, सर अगर कोई और ऑप्शन होता जिसमें V दिया होता तब क्या करते? तब क्या करते? दूसरे ऑप्शन के सर पास चौथा लेटर देखते। चौथा लेटर देखते। सर चौथा भी सेम होता तो पांचवा देखते, पांचवा भी सेम होता तो छठा देखते। सर छठा भी सेम होता तो क्या करते? बेटा छठा भी सेम होता या पांचवा भी सेम होता तो सीधे पहला और दूसरा देख लेते ना एंड से। ये तो मुझे भी पता चल रहा है। अब यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंटर का कोड दिया हुआ है NCG PRGP। बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज -1 + 1 NOP -2 + 2 -2 + 2 दे आर डूइंग, राइट। N से 2 लेटर पहले है P, मतलब P के 2 लेटर पहले जो N है वो अपन ने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली दे आर डूइंग -2 + 2 -2 + 2। तो मेरा जो कोड होगा वो भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है। E के बाद +2 वाला लेटर आना चाहिए था, सेकेंड लेटर के बाद +2 वाला लेटर आना चाहिए था सर। तो +2 वाला लेटर तो यहाँ पे G होता है। G इस वाले ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको हटा दो। इस वाले ऑप्शन में है नहीं तो G को हटा दो। आगे बात करते हैं, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। नाउ आई एम बीइंग लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। इन 3 ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखो सर, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे ये 3 लेटर्स तो तीनों में सेम है। मेरे ये 3 लेटर्स तो सर तीनों में सेम है। जो मेरा मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो लास्ट के 3 लेटर्स में आ रहा है। तो लेट अस गो विथ द लास्ट लेटर। क्योंकि मैं क्यों लास्ट के लेटर से जा रहा हूं? क्योंकि अगर मेरा लास्ट का लेटर जो है इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, तो ऑप्शंस के क्लैश होने का चांस नहीं है। लेट अस गो विथ लास्ट लेटर। लास्ट लेटर पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मेरा आंसर मोस्ट लाइकली मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जरा काउंट करो इस लेटर में। जो गिवन लेटर है उसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और मेरा जो गिवन लेटर है, गिवन वर्ड है, उसमें कितने वर्ड्स हैं? उसमें कितने लेटर्स हैं? देयर आर 6 लेटर्स इन दिस। तो आई विल सेलेक्ट फॉर द कोड। मैं 6th लेटर के साथ वाला पैटर्न ढूंढूंगा। E+2 किया तो मुझे G मिल रहा है। तो मेरा जो लास्ट वाला लेटर होगा ना सर, इसका जो लास्ट वाला जो लेटर होगा वो +2 करने के बाद मिलेगा, डेट इज N+2 is equal to P. So my correct answer will be option number C, that is P. Option number C, that is PGYUMP. मैंने क्या किया, फिर से ध्यान से समझो। मैंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को रिजेक्ट किया। दूसरी बार मेरे को 3 ऑप्शन सेम दिख रहे थे। इन तीनों ऑप्शंस में पहले 3 लेटर्स तो सेम थे, तो देयर वाज नो मीनिंग इन चेकिंग फॉर देम। Then what I found is 4th is different, 5th is different, 6th is also different. 4th is different in the 3, 5th is not different in the 3, because 5th is same in 2 options. तो मेरे 5th लेटर से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था। अगर मैं 4th लेटर से चेक करता या अगर मैं 6th लेटर से चेक करता तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया होता। मैंने 6th से चेक किया। आप लोग चाहो तो आप लोग 4th से चेक करके देख सकते हो। अगेन in that case, no, you can't check with 4th also. Now see here, there is a trick. Let me tell you one thing. You can't check with letter number 4th also, because here I am having U, here also I am having U. You can't check with letter number 5th also, because here I am having M, here I am having M. So the only option that you are being left with is checking with option last letter. is checking with last letter. मुझे जो लगता है कि why you guys were taking too long for this, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जब 3rd लेटर के पास गए, आप जब 4th लेटर के पास गए फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ तो 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं। जब आप 5th के पास गए फिर वही हाल हुआ। फिर घूम फिर के आप 6th के पास आए और आपने बोला कि अच्छा हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं।
ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है इसलिए मेरे पास ये चीजें हैं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास ये चीजें नहीं है। तो आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा? आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा? दो ही तरीके हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके। या तो देखो, दो तरीके हैं आदि। या पहला तरीका तो ये है, 9th स्टैंडर्ड में 3-4 बार पढ़ाई करो, या तो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैं या कोई भी नहीं चाहेगा कि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में 3-4 साल पढ़ाई करो। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी 9th 10th करके निकलो और मेरी जान छोड़ो, 11th 12th में आओ और उसके बाद सक्सेस पाओ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। मैं तो यही चाहूंगा। तो अब एक सवाल और उठता है, सर क्या आपने 9th स्टैंडर्ड 3 बार पढ़ी है? नहीं। तो आपको कैसे आता है? मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में इतनी एनालिसिस नहीं होगी, जल्दी से टेल मी द आंसर। हो गया? सर कर रहे हैं। करो करो करो। Okay, I'm getting the answers. Sir, option number A. Option number A. So I will ask Mr. No, Dhar is saying A or C. Okay, Vishud. Vishud, can you please help me out? Yes, sir. हाँ बताइए, how have you solved the question? Vishud, help me out. अच्छा, Yes, sir. okay, Jay, आप बताओ, how have you solved the question? Sir, in the first one, in national one, Hmm. sir, M is there, so we see that there is a code on that -1. Hmm. Sir, in then 8 is also there. Hmm. Then what about others? GT. Jay, you're not getting my voice. Hello. हाँ बोलिए बोलिए जय बोलिए. Sir, your voice is not coming. No, you are Jay. Sir, Please. is my hello, hello.
बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है, ठीक है. आई हैव आस्क्ड हिम टू रिकनेक्ट. ओके. हाँ भाई, तो जय का तो भाई आवाज चली गई है, अब क्या करें? विशुत की आवाज भी नहीं आ रही है. अनन्या, कैन यू हेल्प मी आउट बेटा? कम ऑन अनन्या. चलो ठीक है. अनन्या इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग मी. तो कौन हेल्प करेगा? देखो कौन हेल्प करेगा. कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे समझ में आ गया. मुझे खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी. देखो भाई, द वर्ड इज रिटन एज नेशनल. ओहो, द वर्ड इज रिटन एज नेशनल. नेशनल मतलब क्या? NATIONAL. द वर्ड इज रिटन एज नेशनल. अब इस वर्ड में क्या हो रहा है सर कि आई एम हैविंग द करस्पॉन्डिंग लेटर्स. आई विल यूज अ डिफरेंट पेन फॉर इट. आई एम हैविंग द करस्पॉन्डिंग लेटर्स एंड द करस्पॉन्डिंग लेटर्स आर C, M, Z. Then I'm having G, MZG. Then I'm having R, L, M, Z and O. ठीक है, ये मेरे लेटर्स हो गए. ये मेरे लेटर्स ऐसे लिखे हुए हैं. अब मुझे कुछ कोडिंग बनानी है. देखो भाई, ध्यान से समझना. जो N की पोजीशन होती है वो होती है 14. N की पोजीशन होती है 14. M की पोजीशन होती है 13. तो 14 प्लस 13 इज 27. 14 प्लस 13 इज 27. A की पोजीशन 1 होती है. Z की पोजीशन A की पोजीशन 1 होती है. Z की पोजीशन 26 होती है. Here also it is 27. Here also it is 27. Here also it is 27. Everywhere it is 27. अब मुझे कोड लिखना है. कोड लिख दो. क्या होगा? Let us quickly write the code for Jaipur. तो जयपुर की कोड अपन कैसे लिखेंगे? देखो Sir, am I audible? यस. अब वेट करो बेटा, वेट करो. सबसे पहले Q आएगा, उसके बाद Z आएगा, Q आएगा, फिर Z आएगा, फिर I के बाद R आएगा. QZR तो मेरे पास आ गया. अब मुझे पोजीशन बतानी है P की. तो P की पोजीशन क्या, P का करस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा? इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. P का करस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. U का करस्पॉन्डिंग कोड क्या होगा? U का करस्पॉन्डिंग कोड होगा F. एंड I का करस्पॉन्डिंग, R का करस्पॉन्डिंग कोड होगा I. सो माई correct code will be QZR QZRFI QZRFI. So I am having QZRKFI. I'm having the option as the correct answer will be QZRKFI. कैसे आया सर QZRKFI? मैंने आपको बताया था जय, perhaps you were disconnected at that time and because your voice was not coming. What will happen here is the sum of the letters, the sum of the numbers, Some of the letters will be 27. sum of the letters is 27. That is what we have to do, and accordingly we can solve this question. So the correct answer will be QZRKFI. Okay, now let us move You were to explaining that. yes, I was explaining that. Let us move to the next question. The next question is letter number coding. अब लेटर नंबर में कोडिंग में क्या होता है सर? यहाँ पे मेरे पास हर लेटर का एक करस्पॉन्डिंग कोड होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कोड I have to find the code of my given letters. ठीक है, लेटर नंबर कोडिंग होती. जहाँ वहां पे लेटर कोडिंग थी, यहाँ पे लेटर नंबर कोडिंग हो जाएगी. चलो, सो द क्वेश्चन इज if the code for tree is 7100, what is the code for frog?
If the code for tree is 7100, the code for frog is 2159. What is the code for free? जल्दी से बताइए, what is the answer? Sir, we have to answer in chat or like ऐसे ही बोल दो यार. 2100. 2100. The correct option A. answer of this question will be 100. 2100. 2100. कैसा Yes, है sir. सर? Option A. FR का 21 ले लो, डबल E का 00 ले लो. So the correct answer of this question will be 2100 or option number A. Let us move to this question. This is interesting question. If the code for ox is 39, then you have to tell me the code for lion. जल्दी से बताएं. Sir, Sir, 38. say sir 38. 38. Yes, sir, how, 38. how you did? Tell me. How you did? Tell me. Anybody? बोलो यार. Sir, it's the addition of their value. Addition of Yes, sir. Yes, sir, it's the addition of the like the ठीक है. values of their. The addition of the values. O का position 15 होता है. X का position कितना होता है? 24. 15 plus 24 is nothing but 39. That is why I told you that it should be like your sacred mantras that you chant daily. So from here, the code for lion will be 38. So the lion का code हो गया 38. So this will be the answer of the question. Next. Next is, my dear friends, substitution coding. Now it is one of the easiest thing that we have. Aren't we going to the second question? No, we are not going to second question. You guys can do it, I know. The next is, the next type of topic is substitution coding. Now what happens here is, if paper is called eraser, eraser is called as bag, bag is called as scale, scale is called as pencil, and pencil is called as paper, then what will a person write with? Tell me what will be, what? The same type Sir, of paper. were there in entrance exam. Sir, paper. Yeah, it might have come. So a person writes with paper. क्यों सर पेपर से क्यों लिखेगा? क्योंकि सर हम लिखते तो Because pencil is called paper. because pencil is called as paper, so a person will write with paper. Simple. So this will be your answer. Sir, Next. this section is funny. Pardon, I'm not getting your voice. Sir, this section is funny. Yeah, this section Yes, is sir. yes, A yes, yes. person will write with paper. Yes, if water is called food, food is called tree, tree is called sky, sky is called wall, on which of the following does fruit grows? Sir, sky. Sky. Sir, sky. Fruit grows in sky. This is more funny. Yes, sir. This is funnier Yes, sir. because fruit goes in sky. अच्छा सोचो अगर वाकई में ऐसा होता कि फल जो है आसमान में उड़ते तो क्या होता? सोचो. तो ग्रेविटी से नीचे पड़ जाते हैं. ग्रेविटी से नीचे आते, लेकिन कितनी तेजी से नीचे आते? सोच रहे हो? बहुत तेजी से टूट जाते हैं. सोच रहे हो अगर आधे किलो का आम आसमान से नीचे गिरता तो हमें कितनी जोर से लगता? यस सर. कभी कभी बारिश में बाहर गए हो? आप लोग कभी यस बारिश में हाँ, सर. बाहर मेनी गए? टाइम. Sir, तो हाँ, बारिश की स्कूल बूंदें जाना जब पड़ता है. बारिश की बूंदें जब स्कूल जाना पड़ता है, बारिश की बूंदें जब सिर पे पड़ती हैं तो चोट लगती है? सर अगर वो ज्यादा तेज हो तो लगती है. ज्यादा तेज होती है तो लगती है ना. मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लो फ्रूट स्काई में होते, बारिश की बूंद तो मिलीग्राम्स में होती है, तब इतनी तेज चोट लगती है. तो अगर हमारे आधे किलो का फ्रूट हमें हमारे ऊपर गिरता तब क्या होता? सर बाल भी बिगड़ जाता है. बाल बिगड़ जाते? बेटा तुम बिगड़ जाते, तुम हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, समझे ना? बाल बिगड़ जाते. खैर, एनीवेज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. वी शुड नॉट प्ले विथ नेचर. वी शुड नॉट प्ले विथ नेचर. यू गाइज आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. आप और आपके जैसे कई सारे बच्चे, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द नेशन. You should make it in your mind that you should never play with nature. If you will play with nature, then the nature will start playing with you. Few days back,
we had a very severe cyclone. हालांकि जामनगर में इसका इफेक्ट नहीं आया था, but the vicinity of Jamnagar has been badly devastated. आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा. Sir, हाँ, Yes. sir, the place I live, like I'm in my native, so here, like the rooftop of a building was made with tin, so that tin, that rooftop just flew away with the wind. Like I witnessed it in front of me. where When the wind- where are you living? Are you living in Somnath? Sir, in हाँ बताइए. no, sir, in Maharashtra, in Maharashtra. ओके, अच्छा ये तो हो गई एक बात. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. इंटरेस्टिंग बात यह है, आज से कुछ सालों पहले तक, लाइक अप टू 5 years और 6 years या से 10 years बिफोर तक, जो भी साइक्लोन, जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन में आता था, इंडियन ओशन रीजन तो भगवान के मंदिर के पास आता था, इसलिए वो टर्न मार के चला जाता. नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है. ये तो जस्ट एक माइथोलॉजी है. जो भी साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन में आता था बेटा, वो तो आप उसकी बात कर रहे हो. दैट वाज केदारनाथ फ्लड. दैट इज नॉट ए टाइप ऑफ साइक्लोन. वो तो जो आप बात करो दैट इज समथिंग एल्स. मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो. जो भी साइक्लोन इंडियन ओशन रीजन में आता था, आप सभी को पता है कि इंडिया इज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी. आज से पहले, आज से कुछ सालों पहले तक, से 20 years 15 years पहले तक, जो साइक्लोन आया करता था, इट यूज्ड टू हिट ओनली द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. कौन कौन से स्टेट्स? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. इन 4 स्टेट्स को साइक्लोन हिट करता था. बट नाउ फॉर द लास्ट 4-5 years what has happened is the cyclones are originating in Arabian Sea also. लेकिन हमारे अर्थ की लोकेशन, हमारे अर्थ की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि 10 में से 2 ही साइक्लोन ऐसे आएंगे जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट को हिट करेंगे. अदरवाइज ऑल द साइक्लोन्स विल हिट the West Asia. Like they will hit either they will hit Africa or they will hit the Middle East. But what has happened, and this is a very surprising fact for our scientists also, that these cyclones are hitting India also. पहले एक तो अरेबियन सी में साइक्लोन ही नहीं आते थे. जो बनते थे वो इंडियन ओशन को, जो वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को हिट ही नहीं करते थे. इसका पूरा का पूरा जो रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. ओके, anyways, I deviated from my topic. So the gist is, आप लोग कम से कम जब बड़े हो जाना तो नेचर के साथ मत खेलना, और जहां पे भी रहना अपने आसपास के लोगों को भी बोलना, यू शुड नॉट प्ले विथ नेचर. ठीक है? एनीवेज, चलो, आई गॉट कैरिड अवे. एक क्वेश्चन और कर लेते बिफोर आई विल लीव. द पजल बेस्ड कोडिंग. पजल बेस्ड कोडिंग में क्या होता है, आपके पास कुछ वर्ड्स का कोड लिखा रहेगा. जैसे 389 का मतलब होता है रन वेरी फास्ट. 964 का मतलब होता है कम बैक फास्ट. 487 का मतलब होता है रन एंड कम. यू हैव टू टेल मी द कोड फॉर कम. जल्दी से सोचिए. सर 9 और 7. सर 9 और 7. 9 और 7 या सिर्फ 7 या सिर्फ 9? सर सिर्फ 7. सर पता नहीं सर, 9 और 7 में सर कंफ्यूजन. देखो, 964 का कोड है कम बैक फास्ट. कम बैक, सर 4 आएगा आंसर. कम बैक फास्ट. और 487 है. 487 का मतलब है रन एंड कम. रन, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड हियर. रन एंड कम. अब मुझे क्या बताना है बेटा? आई हैव टू टेल द कोड फॉर कम. तो कम जो है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है. द कॉमन वर्ड हियर इज 4. So the correct answer of this question will be 4. The correct answer of this question will be 4 and not 7. ठीक है ना? The correct Sir, we answer. can find for each number. Like Yes, 9 is but- fast and 8 is run. See, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, these questions
कैरी ईच क्वेश्चन कैरी 4 to 5 मार्क्स। यहाँ पे चूंकि हमें एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कोड ऑफ ओनली पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, जब आपके पास एक्चुअल में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वहां पे इस क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा 5 नंबर देकर जाएगा। that is the thing. So this was the code. So the code for come का जो code है that is 4. ठीक है, so this was all about the things. We will discuss some more puzzle based questions and the column based coding in the next turn. Till then take care, have a nice day, see you guys on Monday.